Assalamu alaikum dear student. Hope you all are fine. I'm Shandana Ayub from Senior Wing Girls AppSex Fort Road. In today's lecture, we are going to discuss characteristics of organic compounds, which include their composition, combustion, melting and boiling points, solubility, sources, electrical conductivity, and their reaction rate. Composition. As we all know that organic chemistry is a study of structure, properties, composition, reaction, and preparation of carbon-containing compound, which include not only hydrocarbon but also compound with any number of other elements including hydrogen, nitrogen, oxygen, halogen, phosphorus, silicon and sulfur. So composition में हम एक्चुअली पढ़ते क्या हैं? कंपोजिशन जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं वो हम ये देखते हैं कि फ्रॉम विच एलिमेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ. सो जब भी हम कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे तीन मेन हेडिंग्स को हम हमेशा उसमें कोट करेंगे. दैट द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज़ to be found in organic compound is carbon. As we know that in organic chemistry or in organic compound, carbon is the essential element. The second element that is found after carbon is hydrogen, and along with carbon and hydrogen we have various heteroatoms such as oxygen, phosphorus, sulfur, halogen, nitrogen, etc. Combustion. Combustion reaction is a major class of chemical reaction commonly referred to as burning. In most general sense, combustion involves the reaction between any combustible material and oxidizer to form oxidized product that are usually carbon dioxide and water. So student, अब यहाँ पे हम बेसिक सीखेंगे कि हम किसी भी क्लास का कंबस्शन रिएक्शन कैसे लिखेंगे. आप लेटर ऑन जो चैप्टर पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, जब भी आपको कंबस्शन रिएक्शन की हेडिंग आएगी आपने जस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो भी आपके पास गिवन क्लास आप फार्मूला लिखोगे उसके अलावा तीन चीज़ें रिएक्शन में हमेशा सेम रहेंगी. दैट आर ऑक्सीजन ऑन द रिएक्टेंट साइड and carbon dioxide and water on the product side. So it is very easy to write combustion reaction. For example, I have given the example of methane and I have given the example of methanol. आप ये जहाँ से देख सकते हो कि तीन चीज़ें इन रिएक्शन में कांस्टेंट रहेंगी. तो आपको किसी भी क्लास का combustion reaction अगर दे दिया जाए तो you can write it simply. You can generalize this combustion reaction as organic compound plus oxygen goes to form carbon dioxide and water. There are two types of combustion that depend upon the availability of oxygen actually: complete combustion and incomplete combustion. Complete combustion is also known as clean combustion because the oxidized products are gaseous carbon dioxide and water vapors, so it results in no soot formation because here the availability of oxygen is in excess. जब हमारे पास ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में है so it's mean कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का हर कार्बन जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दैट्स वाई दिस कंबस्शन इज कॉल्ड एज कंप्लीट कंबस्शन बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितने भी कार्बन कंटेंट है उन सबको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कर दिया हमने टू कार्बन डाइऑक्साइड. इनकम्प्लीट कंबस्शन इज ऑल्सो नोन एज डर्टी कंबस्शन बिकॉज यहाँ पे सूट फॉर्मेशन होती है दैट रिजल्ट इन द ब्लैकनिंग ऑफ यूटेंसिल इन आवर होम्स इफ़ वी हैव सच केसेस. सो इनकम्प्लीट कंबस्शन की रीज़न क्या होती है? इट इज़ ड्यू टू द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. अगर हम ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं देते तो इट्स मीन हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के जितने भी कार्बन है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होंगे. Some of them, because of the limited supply of oxygen, they are going to be in the form, they are going to convert into carbon monoxide, or they are just simply be present in the form of soot, that is carbon. So incomplete combustion की main reason ये है कि हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है. So the product forms are carbon monoxide, coke and water vapors. Melting and boiling points. स्टूडेंट, जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेट्स, सॉलिबिलिटी एक्सेट्रा को जब भी हम डिस्कस करते हैं तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि इन सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जो चीज़ डिटर्मिन करती है वो है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा उस कंपाउंड का और वो कंपाउंड सॉलिड स्टेट में हमें मिलेगा.
अगर हमारे पास किसी कंपाउंड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ वीक होगी तो वो कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा और नॉर्मली वो कंपाउंड हमें गैस स्टेट में मिलेगा। सो हम यहाँ से कंपैरिजन भी यहाँ से इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हम कहते हैं, हम अगर एक्सप्लेनेशन दें या जर्नल एक स्टेटमेंट दें तो हम ये कहते हैं दैट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज लोअर देन दैट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इनऑर्गेनिक का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई क्यों होता है। The reason for these differences lies in the type of attractive forces holding the particle next to each other in each case. Ionic compound consists of vast array of alternating positive and negative charge ion. Ionic substances are held together by very strong electrostatic forces and there is no individual molecule present. इट्स मीन कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड ऑपरेटिव बॉन्ड है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब हम मेल्टिंग करते हैं तो हम सॉलिड स्टेट से सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट में ला रहे हैं। इसका मतलब है हम उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ को वीक करना चाहते हैं। जब हम आयनिक बॉन्ड को वीक करना चाहेंगे तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दिस इज़ द रीज़न कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हो या अगर हम उसका बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करें तो वो ज़्यादा होगा, वो वैल्यू हाई होगी। वाल इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डोमिनेट बॉन्डिंग है वो कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्डिंग दैट बॉन्डिंग दैट इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वी नो दैट कोवलेंट बॉन्ड इज मच मोर वीकर दैन दैट ऑफ आयनिक बॉन्ड। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे अपने माइंड में रखेंगे कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दे आर यूजली नॉन पोलर इन नेचर और नॉन पोलर कंपाउंड में जो फोर्स ऑपरेटिव हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं दैट आर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस एंड वी नो दैट लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस आर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। पहली बात ये कि हमारे पास आयंस नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं और हम मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना चाह रहे हैं, हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को ब्रेक करना चाह रहे हैं। हमें पता है कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस वीक फोर्सेस हैं, दैट्स व्हाई स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज required to weak London the strength of intermolecular forces that are London dispersion forces। तो कंपैरिजन में जब हम आते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनऑर्गेनिक से हमेशा कम होगा, बट एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि जो हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है अर्थ पे वो ऑर्गेनिक नेचर का है या इनऑर्गेनिक। सॉलेबिलिटी स्टूडेंट, जब भी हम सॉलेबिलिटी को डिस्कस करेंगे एज आई हैव सेड अर्लियर कि हम ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हर क्लास पे अप्लाई करेंगे। जब हम अल्केन्स पढ़ेंगे, एल्कीन्स पढ़ेंगे, हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, अल्कोहल्स पढ़ेंगे, सॉलेबिलिटी के लिए हम एक ही क्राइटेरिया रखेंगे, एक एम्पिरिकल रूल माइंड में रखेंगे दैट इज़ लाइक डिजॉल्व लाइक। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइक? एक्चुअली हम ये कहते हैं कि एक्चुअली अगर दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम हो जाती हैं तो वो एक दूसरे को सॉल्युबलाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने डिटेल पढ़ी है। और अगर दो मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक नहीं हैं तो वो एक दूसरे को सॉल्युबलाइज नहीं कर सकती। तो मैं यहाँ से ये इन्फर कर सकती हूँ या आप ये पॉइंट बना सकते हैं कि जो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो सॉल्युबलाइज होंगे पोलर सॉल्वेंट में और जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो सॉल्युबलाइज होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अल्कोहल पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो टू सम एक्सटेंट डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट वो वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाता है। ऑयल एंड ग्रीसेस दे आर नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे टेंड टू बी सॉल्युबलाइज इन द सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड, और दे आर सॉल्युबलाइज इन एनी अदर ऑयल। सोर्सेज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिटेल डिस्कस किए हैं। सो जस्ट मैं यहाँ पे ब्रीफ रिव्यू दूंगी। 4 मेन सोर्सेज हम डिस्कस करते हैं दैट आर एनिमल एंड प्लांट्स, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, कोल एंड सिंथेसिस। एनिमल एंड प्लांट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका मेजर सोर्स ये है कि हमारे पास उसका जो सोर्सेज हैं या जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं दे हैव 2 origin from dead organism and from living organism. Here we discuss these sources from living organism that are animal and plant that are living. Many organic compounds are obtained directly from plants and animal by suitable method of extraction. For example, we have carbohydrate, protein, various vitamins, hormones and drugs. They derived from plants and animal. Natural gas and petroleum.
Natural gas and petroleum are the major source of organic compound. They are serving as starting material for very use for organic compounds such as synthetic rubber, explosive, drugs, solvent, plastic, etc. आप क्लास 10th में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम पढ़ चुके हैं. यू हैव सीन देयर कि आपके पास पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शन है वो इटसेल्फ जो है वो वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ होती हैं. द थर्ड source of organic compound is coal. We have read in our previous section or previous video the destructive distillation of coal और हमें यहाँ वहाँ से हमने ये concept infer किया कि कोल तार जो है वो सबसे major component है, ये सबसे important component है that obtain after destructive distillation of coal, because coal tar serve as a source for more than 200 aromatic organic compound synthesis. Anything that is made in lab under specified condition is known as synthetic material. हम synthesis को actually synthesis का दूसरा नाम होता है man made. The reason दो processes हैं, दो main reasons हैं जिसकी वजह से हम synthesis पे focus करते हैं. The first thing is कि with the increase in the population हमारे पास जो natural resources हैं वो उस डिमांड को हमारी इंक्रीज पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते. सो वी आर इन नीड कि हम सिंथेटिक मटेरियल बनाएं दैट आर सिमिलर टू अवर नेचुरल मटेरियल सो दैट वी कैन फुलफिल द पॉपुलेशन डिमांड. एंड द सेकंड द रीज़न फॉर द फोकस ऑन सिंथेसिस इज़ कि जो सिंथेटिक मटेरियल हैं बिकॉज ऑफ वी हैव वेरियस स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग देयर प्रेपरेशन. सिंथेटिक मटेरियल जो हैं दे हैव सुपीरियर प्रॉपर्टीज़ एज कम्पेयर टू अवर नेचुरल मटेरियल. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पेंट की एग्जांपल दूँ या डाइज की एग्जांपल दूँ तो जो सिंथेटिक पेंट और डाइज हैं दे आर लॉन्ग लास्टिंग, दे आर वेदर रेजिस्टेंस, दे हैव यूनिक प्रॉपर्टीज़ जो कि हमारे नेचुरल ओरिजिन वाली डाइज में नहीं होती. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है दो मेन कॉन्सेप्ट्स पे. अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ज, दैट चार्ज कैन बी आयन or it can be free electrons, and the second thing is it depends upon the mobility of charge. मॉलिक्यूल के अंदर या हमारे गिवन सिस्टम के अंदर वो चार्ज जो है वो मूव कर सके जब हम एक्सटर्नल सोर्स उस पर अप्लाई करते हैं. सो अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ज डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग. इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड वी हैव आयनिक बॉन्ड्स और हम पढ़ते हैं कि दैट आयनिक कंपाउंड दे आर कंडक्टर इन molten and or in solution form. The reason is that in solid state ions are present. First condition तो हमारी पूरी हो रही है कंडक्टिविटी के लिए कि ions present होना चाहिए, चार्ज present होना चाहिए, लेकिन second condition हमारी फुलफिल नहीं होती बिकॉज solid state में ions जो हैं वो electrostatic force से strongly held हैं, वो move नहीं कर सकते. सो जब हम कंडक्शन की बात करते हैं तो वो दो स्टेट्स हैं जहाँ पे आयनिक कंपाउंड में कंडक्शन पॉसिबल है. वो है उनकी मोल्टन फॉर्म या उनकी सोल्यूशन फॉर्म. बिकॉज इन मोल्टन फॉर्म और इन सोल्यूशन फॉर्म आयंस आर कैपेबल ऑफ moving from one point to an other. So we can say that ionic compound they are conductor because they have free charges only when they are present in molten state and they are present in molten state or in solution form. But now proceeding to our main topic, that is conduction in organic compound. तो organic compound में जो dominant bonding है that is covalent. और covalent bond हमारे पास कैसे बनता है? by the sharing of electrons. जो shared electron है वो दो bonded nucleus के influence में है. and अब हमारे पास electron तो available हैं but these electron are not able to move अबाउट. और जब हम एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करें तो ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के जो इंटर न्यूक्लियस इनकी जो पोजीशन है उसको छोड़ के नहीं जा सकते. सो वी हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कोवेलेंट कंपाउंड्स और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दैट्स व्हाई वी से दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट स्टिल एक्सेप्शन है. यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कोवेलेंट है लेकिन स्टिल वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है हमारे पास कि कितना टाइम एक रिएक्शन लेता है कंप्लीट होने में. द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज स्पीड एट विच केमिकल रिएक्शन हैपन्स. अब हम यहाँ पे भी हम कंपैरिजन में करेंगे कि हमारे पास हम कंपैरिजन देखेंगे कि इनऑर्गेनिक
कंपाउंड के रिएक्शन फास्ट होते हैं या ऑर्गेनिक के? हमारे पास जो जनरल कॉन्सेप्ट है ये दैट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ हायर या फिर फास्टर देन दैट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. फॉर एग्जांपल हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल्स लेते हैं. वी हैव अ रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सोडियम क्लोराइड. हमारे पास जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक बीकर में सिल्वर नाइट्रेट है और दूसरे बीकर में सोडियम क्लोराइड है. हमें आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पता है कि जब भी हम आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं तो डिसोसिएट इनटू आयंस. अब मैं NaCl वाला बीकर, जब ये सोडियम क्लोराइड का बीकर जब सिल्वर नाइट्रेट वाले सोल्यूशन में ऐड करूँगी तो विद इन नो टाइम वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे जो कि सिल्वर क्लोराइड के हैं. तो यहाँ से मैं ये इन्फर कर सकती हूँ कि जो इनऑर्गेनिक रिएक्शन है वो बड़े फास्ट हैं. द रीज़न इज़ दैट हमने देखना है कि जब रिएक्शन होता है तो एक्चुअली दो प्रोसेसेस हैं. पुराने रिएक्टेंट्स में या हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं उनके दरमियान के बॉन्ड्स हमने ब्रेक करने हैं और आपस में दोबारा उनके बॉन्ड मेक करने हैं. तो सो रिएक्शन में हमारे पास जो टाइम लग रहा है वो दो प्रोसेसेस के लिए लग रहा है, इन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड इन बॉन्ड मेकिंग. इनऑर्गेनिक में हमारे पास क्या है कि जब हम आयनिक कंपाउंड की रिएक्शन लेते हैं तो हम नॉर्मली उनको सोल्यूशन फॉर्म में लेते हैं. सोल्यूशन फॉर्म में आयंस ऑलरेडी जो है वो डिस्पर्स हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग ऑलरेडी हुई है. ठीक, जब हम मिक्स करेंगे जो टाइम लगना है रिएक्शन होने में दैट ओनली विल बी कंज्यूम इन बॉन्ड मेकिंग. सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो टाइम लगेगा हमें रिएक्शन के दौरान वो सिर्फ बॉन्ड मेकिंग में लगेगा. फॉर एग्जांपल हमारा जो गिवन केस है, हमारे पास आयंस आइसोलेटेड है, आयंस जो हैं वो डिस्पर्स हैं. तो जब हम मिक्सिंग करेंगे तो सिर्फ टाइम किस में लगेगा, सिल्वर आयन को कंबाइन करने में या बॉन्ड मेकिंग में विद क्लोराइड आयन, एंड सोडियम आयन को बॉन्ड मेकिंग में टाइम लगेगा विद द नाइट्रेट आयन. सो इनऑर्गेनिक रिएक्शन में हमारे पास जो टाइम कंजप्शन है रिएक्शन में वो बॉन्ड मेकिंग में जा रही है. जस्ट नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग है और कोवलेंट बॉन्डिंग में हम ये नहीं कहते कि हमारे पास जब हम उसको डिसॉल्व करेंगे या सोल्यूशन फॉर्म में जाएं तो वो डिस्पर्स हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल मैंने एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल लिया A2 और उसका रिएक्शन हम देख रहे हैं विद B2. तो अब जब हमको मिक्स करेंगे तो क्या होगा, अब टाइम हमने देखना है कि टाइम फ्रेम जो है वो किन चीज़ों में यूटिलाइज हो रहा है. जो पहला स्टेप होगा कि हमारे पास जब हम दो A2 और B2 को मिक्स करेंगे तो पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा कि A और B के दरमियान के जो बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे. सो पहला स्टेप जो हमारा लग रहा है या हमारा जो स्टार्ट का टाइम कंज्यूम हो रहा है वो कंज्यूम हो रहा है इन बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन A और बिटवीन B. जब हमारे पास A से सेपरेट हो जाएगा, B से सेपरेट हो जाएगा, अब हमारी रिएक्शन की सेकंड स्टेज आएगी दैट इज़ बॉन्ड मेकिंग. अब A जो है वो बॉन्ड बनाएगा B के साथ. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो हमने दो मेन फेजेस से गुजरना है. फर्स्ट वी हैव टू ब्रेक द बॉन्ड, देन वी हैव टू मेक द बॉन्ड. अब कॉमन वे में आप सिंपली यहाँ से आप गेस कर सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन स्लो क्यों होते हैं. बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन में हम दो फेजेस से गुजरते हैं. पहले हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं ओल्ड रिएक्टेंट्स में, देन हम बॉन्ड मेक करते हैं. दैट्स व्हाई देयर रिएक्शंस आर स्लो. जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम एक ही फेज से गुजरते हैं दैट इज़ बॉन्ड मेकिंग. दैट्स व्हाई देयर रिएक्शन इज़ फास्ट. होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. थैंक यू.